Welcome everyone. Mm, and you have demanded about the clear voice video, so that's why I am recording. Uh, in the last video, and that was the part one. In part one, I have discussed about the basic concepts of animation frame like this. Okay, now. So I am giving a small recap to you. Okay, just wait for a second. Uh, okay. So in the last session, I have discussed about the basic concepts of animation and what is the animation, you knows about it. But I am giving you a small recap. Okay, just I am giving you a small recap. Animation. What is animation? Okay, animation is the sequence of continuous images. Okay, animation is the sequence of continuous images which runs on a fixed duration. That's it. So you are learning Adobe Animate. Okay, you are learning Adobe Animate. So Adobe Animate, you are very lucky that you are studying about the Adobe Animate because of in the previous session students they have learned Flash. Okay, they both are these both applications are same, Adobe Flash or Adobe Animate. You can use any of them. Okay, now the students who is not getting proper way installation of the application Animate, they can use Adobe Flash, okay, or Flash Professional. Okay, now. And in this session I will show you how to download or install this animation application. Okay, how to download and install animation application. So come everyone. Basic concepts of animation. Animation in the fact of sequence of a static images of drawings. Static image means what? Static image means non-changeable. Okay, static image means non-moving or non-changeable. Okay, नॉन मूविंग ही बोलेंगे. ठीक है. जैसे कि आपका एक इमेज होता है, जैसे आप आज के समय में आप लोग व्हाट्सएप पर GIF इमेज भेजते हैं जो स्माइली वगैरह होता है, जो मतलब कुछ स्टिकर्स वगैरह भेजते हैं, कुछ एनिमेटेड इमेज भेजते हैं, तो वो एक तरह का वो एनिमेशन में ही आता है, बट उसको इमेज नहीं कहेंगे. ठीक है, वो नॉन स्टैटिक इमेज होगा. But here, static image means what? Like as drawing, like as picture. Okay, and then frame. Every single drawing or image or picture, okay, is known as a frame. अब एक होता क्या है, कंटिन्यूअस फ्रेम ही हम लोग एक्चुअली देखते क्या है, इमेज ही देखते हैं. ठीक है, इमेज ही देखते हैं. और हम लोग को एक सेकेंड में ये हम लोग को पता नहीं चलता है, वो इतना फास्ट दिखाया जाता है. और फास्ट इमेज को, सेम इमेज को चेंज कर करके इतना फास्ट दिखाया जाता है जिससे कि हम लोग को लगता है कि वो एक वीडियो है. उसमें कुछ मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, जैसे कि आपको रॉकेट वाला दिखाए थे. एक और छोटा सा हम दिखा देते हैं आपको. ठीक है, जैसे आपको हम दिखाते हैं मिस पेंट. ओके, इसको सारी थोड़ा छोटा करते हैं. ओके, ठीक है. हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया. ठीक है, इस सर्कल को हम सेंटर पे रख देते हैं. यहाँ पे, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे. ठीक है, इस सर्कल को हम यहाँ पे रख देते हैं. Now I am going to save it. Save. I am going to save this in a folder, like I am storing it in D drive. Okay, you can store in a folder, separate folder also, and giving the file name is one.
Okay, file name is one jpg stored. Then again changing the file name, save as jpg to, again changing the location of image, again saving same image. I am saving with different names, little after little bit of modifications. Here I am trying to uh, give you the understanding that how animation works. Okay, na? How our brain interprets it is like as an animation. 7, 8, 9, 10, and 11. Okay, so everyone see, I have created 11 images and I have given continuous names. Okay, I have created 11 images. It is one image. Okay, you can see it is one image. It is second image. One or more image is opening. It is second image. It is third image. It is 11th image. Okay, so you can see I have created so much images. Okay, I have created so much images and I have stored in it with a proper sequence. Okay, like by giving the name 1 2 3 4 as it is. Okay, so I will move it. Okay, now I am going to move it. Before moving, I am opening an application. Okay, so everyone, if I will change the image, then you can see here, it will change the file name. Okay, here it will change the file name. First is what currently is 1.jpg. If I will go to the next image, then it is 2.jpg. If I will change the third image, then it will be 3.jpg. Okay, if I will move forward, then it will be 4.jpg. Okay, so I am going to start. Okay, see what happened. It is it is just only showing the image. Okay, you need to focus here, this area, please focus this in this area. Okay, only this area you need to focus. It will change the image only. Okay, not it is an animation. So image, only image is coming.
and our brain is interpreting that it is an animation. ओके, तो यही होता है एनिमेशन में, इमेज का ही कलेक्शन होता है। ठीक है, हर एक इमेज को इमेज कहेंगे या फिर नॉर्मली हम ड्राइंग ही कहेंगे। ठीक है, इमेज नहीं, इट इज नोन एज ड्राइंग। एवरी ड्राइंग इज नोन एज ए फ्रेम। ओके, एवरी ड्राइंग इट इज नोन एज ए फ्रेम। सो जो इतना समझ गए उनको आगे एनिमेशन समझने में आसानी होगा। ठीक है, एनिमेशन जो लोग शॉर्टकट वीडियो देखे हैं, शॉर्टकट का जो प्रैक्टिस किए हुए हैं उन लोगों को भी बहुत इजी होगा। They will not face any kind of issue. Okay, next, keyframe. Okay, what is keyframe? Keyframe, you can understand the keyframe by practical. Okay, you can understand the keyframe by practical. Okay, so keyframe को इस तरीके से आप समझिए, जैसे MS Paint। ओके ना, so I have created a ball. Okay, I have created a ball. Okay, and I want to flow this ball to here. Okay, flow this ball to here, and after flowing this ball to here, it will be bounced to here, and after bouncing here, it will come here, and after coming here, it will go at the corner. After going to corner, it will come here. Okay, after coming here, it will go here. Okay, so I am going to indicating every place with a different color. Okay, so everyone try to understand. देखिए, now I am going to show you how to create the animation. Okay, I am not creating the animation, but logic I am giving to you. I am explaining the logic only. Okay, so consider about it, everyone. Consider about it. It is a ball. Okay, I want to this ball will bounce to here. After here, it will bounce to here. After here, it will bounce to here, then here, and then here. Okay, so अब देखिए यहाँ पर जहां जहां भी हम रेड डॉट्स लगाए हैं, मतलब वहां पर जहां जहां ये जाएगा बॉल, ठीक है, जहां जहां ये मूवमेंट करेगा, वहां पर हमें की फ्रेम लगाना होता है। ठीक है, वहां पर हमें की फ्रेम लगाना होता है। तो जहां जहां आपको रेड रेड डॉट्स दिख रहा है, जैसे कि जहां जहां रेड रेड आपको सर्कल दिख रहा है, ठीक है, ये रेड रेड डॉट जो जहां जहां आपको दिख रहा है, वहां पर हम लोग की फ्रेम लगाते हैं, ताकि वहां से उसको क्या मिलता है, बॉल बॉल को क्या क्या करना है कि वहां से उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना है। ठीक है, वहां से उसको अपना क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना है। ठीक है, सपोज ये तो हम बहुत बड़ा दिखा दिए। सपोज कीजिए कि कोई दूसरा इमेज हम लेते हैं, कोई दूसरा इमेज से लेते हैं। सपोज कीजिए कि कोई स्टार। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। सपोज कीजिए कि ये कोई स्टार, एक स्टार है। हम चाहते हैं क्या, कि ये स्टार यहाँ से यहाँ पर आ जाए। ठीक है, इस प्लेस पे आ जाए, इस प्लेस पे जहाँ पर एरो हम शो कर दिया है। तो इस प्लेस पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इस स्टार को की फ्रेम लगाना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा की फ्रेम। जैसे हम की फ्रेम लगा देंगे तो रन करने पर ये स्टार हमारा क्या होगा, जैसे हम की फ्रेम लगा देंगे तो रन करने पर ये स्टार हमारा क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसका की फ्रेम यहाँ तक सेट किए हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पर की फ्रेम एक और ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, स्टार यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था एक छोटा सा लॉजिक था एनिमेशन का। ठीक है, आप लोग बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, स्टेज। ठीक है, की की फ्रेम थोड़ा सा और हम बता दे रहे हैं। इन ए सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग्स frames, okay, whenever there is a significant change in the drawing, then that frame called a keyframe. अगर
अगर समझिए कि कलेक्शन ऑफ इस कलेक्शन ऑफ ड्राइंग, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ड्राइंग में जब भी कुछ मूवमेंट होता है, ठीक है, जब भी कुछ मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट पर कुछ भी मॉडिफिकेशन हमें दिखता है, तो वह उसको की फ्रेम कहते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझा जा सकता है। ओके, ये फॉर एग्जांपल, इन एन एनिमेशन सीक्वेंस, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन द फ्रेम इज शोइंग इट्स न्यू पोजिशन विल बी कॉल्ड द की फ्रेम। ओके, इट विल बी प्रैक्टिकल, यू कैन अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली से आपको समझ में आएगा। एक यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, उसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आपको। देखिए सपोज ये यहाँ पर एक बॉल का एग्जांपल है। ये बॉल कहाँ पर है? बॉल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसको की फ्रेम ऐड किया गया है। स्टार्टिंग आपको यहाँ से है, और जहाँ पर ये जाएगा कॉर्नर पे, ठीक है, वहाँ पर आप देखिए कि एक की फ्रेम ऐड किया गया है यहाँ पे। फिर जहाँ पर उसको चेंजिंग करना है, ठीक है, यहाँ पर एक चेंज, उसको क्या करना है, देखिए यहाँ से शेप धीरे धीरे बड़ा हो गया है, तो ये लास्ट शेप इसका यही है, तो यहाँ पर फिर की फ्रेम लगा है। फिर इसको नेक्स्ट मूव करना है यहाँ तक, तो यहाँ पर कुछ दूसरा शेप तक आना है, तो यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएगा। मतलब जहाँ जहाँ चेंजिंग होगा, फिक्स चेंजिंग जहाँ जहाँ होगा, वहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देना है। ठीक है, यही है। नेक्स्ट है स्टेज। स्टेज क्या होता है? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, स्टेज कोई भी कैरेक्टर को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए या कोई भी एनिमेशन बनाने के लिए स्टेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। देयर इज अ वेरी बिग बिग इम्पोर्टेंस। आप एनिमेशन क्रिएट करें तो कहाँ पर क्रिएट करेंगे? ठीक है, वो आपको एनिमेशन जो आप क्रिएट करेंगे वो कहाँ पर क्रिएट करेंगे? वो कैसा दिखना चाहिए, बैकग्राउंड उसका कैसा दिखना चाहिए? ठीक है, आप बैकग्राउंड किसी इमेज के ऊपर आप बना रहे हैं या फिर कहाँ बना रहे हैं, वो स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेज इट इज द A stage is the large area where the drawings appears on the stage. Okay, we create the drawing and place other objects for our animation images. After the animation it is completed, the final animation is also displayed on the stage. जो भी हम लोग animation हम जब हम when we will create the animation, after creating the animation, when it will execute, then it will run so the animation on our stage. Okay now. A stage is nothing except a background. Okay. Next, timeline. Timeline. There is the very biggest topic. Timeline. In this whole chapter, you need to know about timeline, layers, and keyframe. Timeline, layers, and keyframe. Okay. Timeline decides that how much frame it will work. Okay, the timeline is the area where we manage our time, our animation frames. A timeline is the sequence of frames and a stack of layers. Layers, समझिए लेयर क्या है बताएंगे। As the drawings are arranged on the timeline, the animation appears on the stage. Okay, देखिए टाइमलाइन है क्या, थोड़ा सा इस डायग्राम से आपको समझाया जा सकता है। देखिए ये बॉल है, बॉल यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पर गया। तो इस ड्यूरेशन में जितना भी ट्रेवल किया ना, वो जब टाइम, वो क्या होता है, टाइमलाइन पर दिखता है। ठीक है, कि एक सेकंड में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा, ये सब कुछ हमें टाइमलाइन पर दिखता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको, ये जो आप देखें, एक एक बॉल यहाँ पे, एक छोटा सा बॉल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जितना भी आप देखें ये सारा का सारा एक फ्रेम कहलाएगा। ये फ्रेम वन हो गया, ये फ्रेम टू हो गया, ये फ्रेम थ्री, ये फ्रेम फोर, ये फ्रेम फाइव, फ्रेम सिक्स, फ्रेम सेवन, फ्रेम एट, फ्रेम नाइन, फ्रेम टेन, फ्रेम इलेवन, फ्रेम ट्वेल्व, फ्रेम थर्टीन, फ्रेम फोर्टीन। टोटल 14 फ्रेम है इसमें। ठीक है, मतलब ईच एंड एवरी इमेज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ईच एंड एवरी इमेज वो आपका एक फ्रेम कहलाता है। ठीक है, और जहाँ पर लास्ट चेंजिंग होता है, वो वहाँ पे की फ्रेम ऐड होता है। ठीक है, तो टाइमलाइन भी एक, इसको आप समझ सकते हैं विथ प्रैक्टिकल। एक प्रैक्टिकल आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, हम तो एक प्रैक्टिकल दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाएं। ठीक है, लेकिन जब तक आप लोग खुद से नहीं बनाइएगा, वेस्टेज है पढ़ना। ठीक है,
So try to understand what I will say, whatever I am saying. लेयर, लेयर क्या होता है? देखिए, एक इमेज जो होता है ना, वो एक टाइप का लेयर ही होता है। ठीक है, एक इमेज एक टाइप का लेयर ही होता है। वी कैन से फ्रेम इज एन फ्रेम, ए सिंगल फ्रेम इज नोन एज ए लेयर। ओके, यहाँ पर आप देखिए जितना फ्रेम है उतना आप समझ लीजिए कि लेयर है। ठीक है, थिंक द थिंक ऑफ द लेयर। ओके, यहाँ पे लेयर, और भी हम कहेंगे लेयर यहाँ पे। एक्चुअली लेयर यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा सा। यहाँ पर फोटोशॉप या फिर आपका शॉर्टकट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर लेयर कहने का मतलब एक कंप्लीट एनिमेशन की बात आ जाती है। ठीक है, इस लेयर को भी हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे, लेयर आपको समझाएंगे। लेयर को जो समझ गया वो बहुत अट्रैक्टिव इमेज वो बहुत अट्रैक्टिव एनिमेशन बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वीवीआई आपका यही है, लेयर। लेयर को समझना जरूरी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वीवीआई। ठीक है, एग्जाम के बेस से नहीं कह सकते, ठीक है, बट आप अगर रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपको समझना है कि हाँ कंप्यूटर में एनिमेशन होता क्या है, तो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है ना? So, think about layer is the stack of transparent sheets where each sheet has one part of the drawing. For example, in a story, देखिए एक्चुअली होता है कि लेयर्स को हम थोड़ा समझाते हैं, इस तरीके से समझाते हैं कि सपोज कीजिए कि ये आपका स्टेज है। ठीक है, इस तरीके से नहीं, हम्म, ये आपका स्टेज है। ठीक है, ये आपका स्टेज है। तो स्टेज ये एक लेयर हो गया। ठीक है, एक लेयर आपका स्टेज हो गया, जहां पर इस स्टेज पे आपने क्या किया है, एक रोड बना दिया है। इस टाइप का एक रोड है। ठीक है, एक रोड है, यहाँ पर एक छोटा सा घर है। ठीक है, एक छोटा सा घर है, यहाँ पर एक ट्री है। अब इस रोड पे क्या है आपको, ये आपका एक लेयर हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक आपका क्या है, एक बस है। ठीक है, ये एक बस है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, ये एक बस है, जो भी है उतना हम ड्राइंग नहीं कर सकते। अब समझिए, ये बस को यहाँ से समझ, थोड़ा देर के लिए समझिए, बस यहाँ से, ये बस यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन में मूव कर रहा है। मतलब ये बस यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आउटसाइड तक जा रहा है। ठीक है, ये बाहर जा रहा है एनिमेशन के। ठीक है, बाहर जा रहा है। तो ये आपका एक सेपरेट लेयर हो गया, मतलब ये लेयर टू हो जाएगा। ठीक है, समझिए, लेयर टू हो गया। एक लेयर क्या हो गया आपका, बैकग्राउंड इमेज स्टेज पर जो भी आप डेकोरेट किए। सेकेंड लेयर क्या हो गया आपका, बस जाता हुआ रहेगा। ठीक है, ये सेकेंड लेयर हो गया। थर्ड लेयर भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। थर्ड लेयर में क्या हो रहा है आपका, इंडिकेट कर देते हैं हम, जैसे रेड से ही इंडिकेट कर देते हैं। जैसे कि ये आपका समझिए कि ये बारिश हो रहा है। ठीक है, ये बारिश हो रहा है। ये रेड रेड जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका बारिश हो रहा है। तो ये बारिश जो हो रहा है ना, ये लेयर थ्री आपका कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तीनों लेयर को एक स्टेज पर जब रन करवाएंगे ना, तो हमें क्या दिखेगा, इसी लेयर को, इसी तीनों लेयर को अगर हम रन करवाएंगे अपने कंप्यूटर में या फिर अपने एनिमेशन में, तीनों लेयर जब एक साथ रन करेगा ना, तो हमें क्या दिखेगा, बारिश भी हो रही है, बस भी जा रही है, और वो जो स्टेज है उसमें घर वगैरह सब कुछ है। इस तरीके से देखा, मतलब एक इन्वायरमेंट हमें मिल जाएगा कि एक रोड है, रोड के पास घर है, एक पेड़ है, और बारिश भी हो रही है, और उस बारिश वाले वेदर में एक बस जा रही है रोड, सड़क पे।
तो ये इमेज हमें विजुअलाइज कीजिए, समझिए इसको, सिर्फ माइंड में विजुअलाइज कीजिए कि ऐसा होगा हम लोग बनाएंगे तो। ठीक है, तो यही है आपका लेयर में समझने के लिए। थोड़ा सा लेयर को आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, ऐसे हम प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे। ठीक है, सो गेटिंग स्टार्टेड। ओके, सो एवरीवन, वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है। So everyone, I am going to show you download animation application. So for downloading the animation application, open Google, google.com. Okay. After opening the Google, write download animate 2015. Okay. Download animate 2015. After searching this keyword, you need to find out get into PC. I get into PC. Okay, you need to find out I get into PC. Okay, now I get into PC. If you will search this keyword, obviously you will get I get into PC. Okay, I get into PC. Here is the link, Adobe Animate CC 2015 ISO free download. So click on this given link. Okay, I have clicked on this link. Okay, it has opened that a website. Okay, after opening, come to the bottom section and you will see download now. There is a button download now. Okay, there is a button download now, so click on it, download now. It will open another page, and here you need to wait. Okay, you need to wait. It will be start downloads in few seconds. And remember this thing, it is showing the password, so copy this password and keep it safe. Okay, I get into pc.com, it is the password of your file. So keep note this password, it will be required. I will show you when. Click on download now again. Okay, it is going to be downloading. Okay, then save it. Okay, now save it. Okay, so I have successfully downloaded this application. Okay, now I have successfully downloaded this application. Where is that application? Just wait for a second. Get into pc.com. Okay, here is the file. Okay, now so in the next session, after downloading this application, in the next session I will discuss how to install it and how to use. Okay, because of already ये वीडियो लंबा हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कैसे करना है। So everyone, for downloading this application, see properties. What is the size of this file? 1.31 GB, not MB, 1.31 GB. Okay, animate is not the smaller file. You need to require at least 2 GB of data, 2 GB to 3 GB. Okay, you must having 2 to 3 GB of data that you can download it easily. Otherwise, if you are having a little bit of data like 1 GB or 1.5 GB, then it is wastage of your data. You will आप लोग डाउनलोड करेंगे, और अगर कहीं से बीच में अगर डिसकनेक्टिविटी हो गई या फिर नेट स्लो हो गया या फिर नेट खत्म हो गया, तो आपको फिर से स्टार्टिंग से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सो बी केयरफुल, यू नीड एट ए टाइम you need at least 3 GB, 2 to 3 GB of data. Okay, now before downloading this application. Okay, those students who are not getting down to download this application, they can download Flash Professional. Okay, it is very few size of application. Okay,
वाई आई एम सेइंग टू यू, देखिए जिनके पास कंप्यूटर थोड़ा सा पुराना है या फिर जो विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, जो लोग विंडोज 7 यूज करें उनको एडोब ये फ्लैश प्रोफेशनल डाउनलोड करना होगा। ठीक है, उसमें भी सेम फीचर है, मिलता जुलता ही फीचर है। ठीक है। So thank you everyone. In the next session, I will discuss about the how to install it and how to activate it also. Okay. Thank you everyone. Thank you.